Hello friends, today again we are starting with the profit and loss lesson only of the FY Become semester 1, and we are doing today 4.1 objective type of question. Now objective type of question जो आपके multiple choice है, ये वाले question है multiple choice के, you can see on the screen. अभी multiple choice वाले हो लेकिन हमें इसकी method आनी चाहिए तो ही you can choose the correct answer. So I'll be solving the every sum with the method so that you can choose the correct answer. Okay, we are starting with the first question of your multiple choice question. Page number 4.9 का first sum है वो. Rahul sells 2 helmets at the rate of 1,232 each. Each मतलब हर एक का अलग अलग price. 2 का it will be double. He gains 12% on one and loses 12% on other. मतलब एक वो सेल कर रहा है 12% प्रॉफिट से, दूसरा लॉस कर रहा है 12% से. What will be the total profit and loss in the whole transaction? तो हमें total profit and loss find out करना है. Okay, question आपके पास है, so I have not written the question. Now what the question says that the selling price he sells for the selling price is rupees 1,230 for the first helmet. Okay. Now this first helmet he is selling at profit of how much? 12%. So what is the selling price? Let CP be 100. So 100 plus 12 हो जाएगा, right? Now everybody knows this. Even if I do not, let CP be rupees 100. फिर भी लिख के दे दिया, चलो. तो आपका SP क्या हो जाएगा? 112. CP SP 100 आपका CP है, कॉस्ट प्राइस है 112. अगर आपका सेलिंग प्राइस 1,232 होगा तो कितना? फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. 1,232 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 112 क्या आ जाएगा आपका SCP? मल्टीप्लाई करोगे तो it will be 1,100. It is 1,100. Okay. Now let us start with the second helmet. Second helmet selling price आपका वही है rupees 1,232, but you are selling at a loss of 12%. लिखा है वहाँ पर सेकेंड वाला लॉस ऑफ 12%. वही लाइन लेट CP भी रुपीज 100. सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 माइनस 12 इट विल बिकम 88. तो आपका कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 88 माइनस कर दो तो CP SP 100 सेलिंग प्राइस 88. अगर 100 में तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करो 1232 इंटू 100 डिवाइड बाई 88. कितना आ रहा है आपका कॉस्ट? राइट, इट विल बी 1,400. ओके फाइन. नाउ we'll find the next one. Total CP. Total cost price आपका कितना दिया है? 1,100 plus 1,400. 1,100 plus 1,400. It is becoming rupees 2,500. Total SP that is the selling price आपका दो हेलमेट का मिला के 1,232 plus 1,232. 2 times you are going to write because आपने दो हेलमेट लिए. So 2 हेलमेट का आंसर will come how much? Rupees 2,466. Right? आपका cost price is greater than selling price. That is, if it is cost price greater, it will be a loss. 2,500 minus 2,464. How much coming? 36. Rupees 36. Right? So rupees 36 is your answer. आपका ऑप्शन नंबर B है, right? ऑप्शन B is your answer. That is rupees 36. Very simple methods I have shown you. वही हमारी मेथड है. लेट CP भी रुपीज 100 एंड आपने कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हेलमेट फाइंड किया, नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस का सेकंड फाइंड किया, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करके सेलिंग प्राइस को ऐड कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, लॉस आ गया 36. राइट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके, विल स्टार्ट विद नाउ सेकंड. Grocery shop is offering 10% discount on the purchase of rupees 500 and above. आप कोई ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो तो आपके पास डिस्काउंट की स्कीम है कि इफ़ यू बाय मोर देन 500 rupees, you will get a 10% discount.
A 5% discount is given on the purchase of value of above 250 but below 500. 250 और 500 के बीच में अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है तो you will get a 5% discount. A discount of additional 1% is given if payment is made instantly in cash. आप ऑन द स्पॉट डाउन पेमेंट करोगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. कॉस्ट ऑफ द 1 पैकेट ऑफ बिस्किट प्राइस इज ₹30. एक पैकेट का 30 रुपीज़ है. कस्टमर इज बाइंग 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, तो हाउ मच ही विल हैव टू पे. तो 25 बिस्किट, जैसे आप जा रहे हो और आपको आप 25 बिस्किट्स के जो पैकेट्स ले रहे हो एट द रेट ऑफ ₹30. तो ये स्कीम के हिसाब से आपको व्हाट अमाउंट यू विल पे फॉर द 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, वैसा क्वेश्चन है आपका. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप. पहले कंडीशन क्या दिया है वो लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन फॉर ₹500 purchase, how much discount is that? 10% discount. This is given, right? ₹250 to ₹500, discount is 5%. That is also given. Extra 1% discount ऑन कैश पेमेंट. ये हमारी स्कीम उन्होंने क्वेश्चन में लेके रखा है. राइट, दिस मच इज द क्वेश्चन. नाउ कस्टम 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू ₹30. तो कस्टमर इज बाइंग 25 पैकेट्स ऑफ बिस्किट is equal to ₹30 into 25. It comes to ₹750. Right? मतलब he will be eligible for discount of 500 because more than 500 के amount हो गए, they will get a 10% discount. Therefore, the 10% discount on ₹750. 750 into 10 upon 100. It comes to ₹75. Okay. Now, it means from 750 will pay less ₹75. Amount payable after discount ₹750 minus ₹75. How much coming? ₹675. Everybody is getting 675. Okay. Now, additional 1% discount on cash payment. Therefore, 675 into 1% comes to ₹6.75. Right? So, actual amount payment after cash discount कितना हो जाएगा उसका? 675 में से आप माइनस करोगे ₹6.75. Get it minus. How much coming? ₹668.25. If you look at your options, it is option B. Right? Answer is option B. That is ₹668.25. आपको खाली डिस्काउंट फाइंड करना है. आपने फाइंड कर लिया 750 पे 10%, 675, और आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो 675 पे और 1% डिस्काउंट माइनस कर लोगे. 675 में से 6.75 तो आपको पे करना है 668.25 फॉर 25 बिस्किट्स पैकेट. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, let's start with the third sum. A merchandise store affiliated the sports flag at a profit of 25%. मतलब जो merchandise store है, he is selling the flag at a profit of 25%.
इफ द कॉस्ट प्राइस इज 160, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? दिस इज वेरी सिंपल सम. फिर भी हम लोग मेथड कर देते हैं. वही हमारा मेथड. लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100. राइट, ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25, दैट इज 125. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 125 होगा. क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट प्राइस इज 160. सो 160 तो सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 160 इंटू 125 अपॉन 100. कितना आ जाएगा? इफ यू कैलकुलेट इट विल बिकम ₹200. राइट, नाउ आई शो यू द सिंपल ट्रिक ऑल्सो. ये तो चलो हमने मेथड से किया ना. सिंपल ट्रिक से अगर इतना सिंपल वाला सम आ रहा है तो वो कैसे करने का? डायरेक्टली आपको अभी ना, दोज आर वाचिंग द चैनल दे मस्ट बी नोइंग कि हम लोग ये सारे सम कॉस्ट प्राइस 100 पे कर रहे हैं. तो व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली ऑन योर कैलकुलेशन कि 100 आपका कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना है? 25. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 125. डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो जो भी प्रॉफिट है 125 इंटू 160 डिवाइड बाई 100. आपको ये पूरी मेथड करने की जरूरी नहीं है. सपोज यहाँ पर दे दिया 15%, तो आप क्या करोगे? 115 इंटू 160 अपॉन 100, आपको आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू डू द सम इंस्टेड ऑफ डूइंग द फुल मेथड. फुल मेथड इसलिए बता रहे हैं कि भाई यू विल गेट आइडिया कि आंसर कैसे आया. राइट, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बी. सो ऑप्शन बी इज आंसर. ओके, we'll start with the sum number 4 also. Now, Kapil sells the mobile to Sachin at a gain of 15%. Sachin again sells to Rohit at a profit of 12%. If Rohit pays 322, what is the cost price of Kapil? There are 3 persons involved in the transaction. Kapil, Sachin and Rohit. Okay, we'll write it on the name of all the three. Kapil, Sachin and Rohit. Okay. Now what is given? Kapil sells a mobile to Sachin at a gain of 15%. मतलब कपिल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15%. Okay. Now Sachin gains again. It is gain नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है. अगेन आता है वो वर्ड. Sachin again sells to Rohit at a profit of 12%. प्रॉफिट ले रहा है सचिन कितना? 12%. Okay. If Rohit pays 322, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोहित कितना है? ₹322. मेक श्योर किसी का कॉस्ट प्राइस तो सेलर का सेलिंग प्राइस. अगर रोहित का वो कॉस्ट प्राइस है तो सचिन का वो होगा सेलिंग प्राइस. इनडायरेक्टली हमें सचिन का सेलिंग प्राइस दिया है ना. अगर मैंने आपसे खरीदा तो आपका वो सेलिंग प्राइस, मेरा वो कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर वैसा ही है, रोहित का कॉस्ट प्राइस है तो सचिन का सेलिंग प्राइस, एंड हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. वापस वही मेथड जो मैंने आगे करके दिया था. लेट सीपी बी ₹100. राइट, आपका प्रॉफिट आ रहा है 12%. इट इज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112. वापस वही मेथड करेंगे. सीपी एंड एसपी. 100 कॉस्ट प्राइस है, 112 एसपी. आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 322. हाउ मच इज कॉस्ट प्राइस? 322 इंटू 100 डिवाइड बाई 112. कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 287.5 रुपीज. 287.5 आपका फाइनल 50 पैसे. नाउ अगेन विल गो बैक टू द क्वेश्चन. कपिल सेल्स मोबाइल टू सचिन. मतलब सचिन का कॉस्ट प्राइस जो है ₹287.50. इसका कॉस्ट प्राइस तो कपिल का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. राइट, इसका कॉस्ट प्राइस तो इसका सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे. वापस वही रहता. लेट सीपीबी ₹100. राइट, सो सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग. 100 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 150. सीपी एस 100 है, सेलिंग प्राइस 115. अगर सेलिंग प्राइस 287.5 है तो व्हाट इज कॉस्ट? 287.5 इंटू 100
अपॉन 115. कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 250. कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 250. And that is your option is coming C. This is your okay. So एक का कॉस्ट प्राइस था, दूसरे का सेलिंग प्राइस. सेम मेथड वी हैव यूज्ड. फिर वापस वही हमारी मेथड की. इफ यू लुक एट द सम, हर एक सम वही मेथड से हो रहा है. लेट CPP 100 and cost price and selling price. Right? This is the easiest method. You will get it. We'll start with the next sum then. And please take the screenshot.